السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا اور میں ہوں شمائلہ ارشد۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی ہیں۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے خبر یہ ہے کہ لانڈھی کے ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں فیکٹری میں آگ کا واقعہ پیش آیا ہے۔ فائر بریگیڈ کی 12 گاڑیاں 2 اسنوکرز آگ بجھانے میں۔ جی خرم گلزار، کیا تازہ ترین صورتحال ہے؟ سندھ حکومت کا کامن ویلتھ پارلیمنٹیرینز کے لیے ثقافتی میوزیکل سیگمنٹ منسوخ کرنے کا اعلان۔ وزیر اطلاع سین شرجیلی نام میمن کہتے ہیں کہ فیصلہ اسلام آباد دھماکے میں شہید افراد کے لواحقین سے یکجہتی کے لیے کیا گیا ہے۔ ہم سوگوار خاندانوں کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ عشائیہ سادگی موسیقی کے بغیر متاثرین اور قومی غم کے احترام میں منعقد ہوگا۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی 2 الگ الگ کارروائیوں میں 24 خوارج ہلاک ہو گئے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق وفاقی وزیر اطلاعات نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو ذمہ داریاں نبھانے کا مشورہ دے دیا۔ عطا تارڑ نے ایپیکس کمیٹی کے اجلاس بلانے اور شہید کے جنازے میں شرکت کرنے کو خوشائن قرار دیا۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ بسنت کے موقع پر شہری بھرپور طریقے سے جشن منا رہے ہیں اور اس میں کوئی سیاسی تقسیم نہیں ہے۔ کمیٹی کا بھی اجلاس کیا، کل میں دیکھ رہا تھا کسی شہید کے جنازے میں بھی وہ شریک ہوئے میں تھے، تو یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ صوبے کے وزیر اعلیٰ کو اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے۔ اپوزیشن لیڈر ایک بڑا دیکھیے کانسٹیٹیوشنل عہدہ ہے، ان کا لیٹر موصول ہوا ہے، جیسے اس پہ کوئی لائے عمل بنتا ہے تو آپ کو ضرور آنا ہے۔ چیمبر میں آئیں گے یا کیا گیا ہے دہشت گردوں کے خلاف، اس کے سرگرم؟ دیکھیے میں تو سمجھتا ہوں کہ ہماری سیکیورٹی فورسز جو ہیں دنیا کی بہترین سیکیورٹی فورسز میں سے ہیں، ہماری فوج، ہماری پولیس، اور جس طریقے سے انہوں نے ان ٹیررسٹ کو جو ہے نیست و نابود کیا اور بڑے نقصان سے جو ہے وہ صوبے کو بچا لیا، تو پھر وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان اور ازبکستان کے درمیان باہمی تجارتی حجم $2 ارب تک لے جانے کا عزم۔ ازبک صدر نے دونوں ممالک کے درمیان باہمی سمجھوتوں پر مؤثر عمل درآمد کے عزم کا اظہار کیا۔ دفتر خارجہ نے دونوں ممالک کا مشترکہ اعلامیہ بھی جاری کر دیا۔ ادھر ازبک صدر کو ایوان صدر میں نشان پاکستان کا اعزاز کیا گیا۔ ازبک صدر شوکت مرزایوف کا دورہ پاکستان، شاندار استقبال، تاریخی سمجھوتے۔ پاکستان ازبکستان بزنس فورم کی تقریب بھی منعقد ہوئی۔ خطاب میں وزیر اعظم نے دونوں ممالک کے نجی شعبوں کے درمیان $3 ارب سے زائد کے سمجھوتوں کو اہم پیش رفت قرار دیا۔ ازبک صدر نے بھی دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ دفتر خارجہ نے پاکستان اور ازبکستان کا مشترکہ اعلامیہ بھی جاری کر دیا۔ پاکستان نے ازبک ٹرانزٹ کارگو کو اپنی بندرگاہوں اور سڑکوں کے استعمال کی پیشکش کی۔ ازبکستان افغانستان اور پاکستان کے ریلوے منصوبے کو متفقہ طور پر منظور کر لیا۔ ازبکستان نے پاکستانی تاجروں کو 10 سال کے لیے ٹیکس استثنا دینے کا اعلان کیا۔ ادھر معزز مہمان کو ایوان صدر میں نشان پاکستان کے اعزاز سے نوازا گیا۔ پاکستان پر امن اور ذمہ دار ریاست ہے۔ خطے کے استحکام اور عالمی امن کے لیے پاکستان اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ چیئرمین پی پی بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ عدم برداشت کے مقابلے میں مکالمے کو فروغ دینا ہوگا۔ بین المذاہب ہم آہنگی کا فروغ وقت کی ضرورت ہے۔ ہمارے خاندان نے جمہوریت کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں۔ The world doesn't need more influencers. It needs more servants, young leaders. You will inherit a world facing enormous challenges: climate change, economic inequality, religious polarization, political extremism. Refuse to let religion be weaponized. Insist that it remains a force for love, justice, and peace. My grandfather, Shaheed Zulfikar Ali Bhutto, and he was assassinated. His 2 sons, my uncles, Shah Nawaz Bhutto and Murtaza Bhutto, were also assassinated. And ultimately, my mother, who was the first female prime minister in the Muslim world, was taken by extremism during a democratic campaign. ترلا خودکش دھماکہ، جے یو آئی نے 8 فروری کو ہونے والا جلسہ منسوخ کر دیا۔ مولانا فضل الرحمان کی دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت۔ اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں مولانا فضل الرحمان نے نئے الیکشن کا مطالبہ بھی کر دیا۔ ہم 8 فروری کو ان کے پیا جام یا شٹر ڈاؤن اپیل کو سپورٹ کرتے ہیں، اور ہماری جماعت نے اگر کوئی جلسہ یا جلوس رکھا ہے ہم ان کو منسوخ کر دیں گے۔ تو ہم اپنے پروگراموں کو بھی ان کے اعلان کے مطابق اس میں مرج کریں گے۔ آج جو پنڈی میں واقعہ ہوا ہے، پنڈی اسلام آباد کے ایک امام بارگاہ میں، اس واقعے پر ہم شدید افسوس کا بھی اظہار کرتے ہیں۔
इसका भरपूर मजम्मत करते हैं। हम 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन को जिस तरह उस दिन हमने मुस्तरद किया था, आज भी हम उसी मौक़िफ़ पे कायम हैं, हम उसको मुस्तरद करते हैं। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि पीटीआई अदालत में तौहीन अदालत की दरख्वास्त क्यों जमा नहीं कराती। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बताएं कि सियासत को ज़ाती दुश्मनी में किसने बदला, किसने सियासत में गालम गलोच का कल्चर परवान चढ़ाया। राना सनाउल्लाह का कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तकरीर का जवाब। अल्लामा राजा नासिर बोले कि हुकूमत जवाब दे कि बानी पीटीआई को मुआलिजीन फैमिली तक रसाई दी जाए। एमल वली खान का तीरा सूरत हाल पर मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा। कहा तीरा में आवाम के लिए सूबाई और वफाकी हुकूमत का रवैया काबिल बर्दाश्त नहीं है। तलाल चौधरी ने कहा कि हम पाकिस्तानी हैं, हमें दहशत गर्दों की ज़बान नहीं बल्कि पाकिस्तान की ज़बान बोलनी है। मसला इमरान खान साहब के डॉक्टर्स का, मुआलजे का, इलाज का, मैंने उस दिन भी कहा था हमें यहाँ कमेटी हमारी बननी चाहिए, बाकायदा जेलों में जाए और देखे कि आम कैदी के साथ क्या हो रहा है। डॉक्टर्स को क्यों नहीं बुलाया जा रहा, उनका हक नहीं है जी, क्यों ऐसे किया जा रहा है। उन्होंने कहा बाजी में ऐसे हुआ, फला ऐसे हुआ। भाई देखें, किसी एक गलत चीज दूसरी गलत चीज की इजाजत नहीं दे दी अगर गलत है कोई तो। मैं ये ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब को उनकी पोजीशन और अदालत के हुक्म के मुताबिक जो इंटाइटलमेंट उनको है वो बिल्कुल उनको मिल रही है, और जो उनके इलाज का मामला है उसमें जैसे उन्होंने खुद चाहा उसी के मुताबिक जो है वो किया गया। तिरा के मामले पे सर जो वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत का जो रवैया है वो आवाम के लिए नाकाबिल बर्दाश्त रवैया, मज़े का खेज बयानात हैं। सर आई रिक्वेस्ट द चेयर, आई रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट कि इन मसाइल पे इन हाउस इजलास बुलाएं, मसाइल को महदूद ना करें। रमज़ान से पहले महंगाई में इजाफा। टमाटर, प्याज, लहसुन और चीनी समेत 12 अशिया ज़रूरिया महंगी हो गई। इदारे शुमारियात के मुताबिक हफ्तावार बुनियाद पर महंगाई 0.9% बढ़ी, जबकि सालाना बुनियाद पर बढ़कर 4.84% हो गई। एक साल में टमाटर 80%, आटा 35% और गैस 30% तक महंगी हो चुकी है। रमजान मुबारक की आमद से पहले ही आवाम को महंगाई का नया झटका। टमाटर, प्याज, लहसुन और चीनी समेत 12 बुनियादी अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक महंगाई हफ्तावार बुनियाद पर 0.9% बढ़ी, जबकि सालाना बुनियाद पर महंगाई बढ़कर 4.84% तक जा पहुंची। एक साल के दौरान टमाटर की कीमतों में 80%, आटे में 35%, जबकि गैस में 30% तक का इजाफा हुआ। गुज़श्ता हफ्ते टमाटर 12.78% महंगे होकर औसतन 111 रुपए फी किलो फरोख्त हुए। प्याज 70 रुपए और लहसुन 464 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। चीनी की औसत कीमत 156 रुपए रही, जबकि डीजल की कीमतों में भी 4% से ज़ायद इजाफा हुआ। तहम आटा, अंडे और दाल मसूर समेत 13 अशिया की कीमतों में मामूली कमी रिकॉर्ड की गई। सदर आलमी बैंक अजय बंगा का कहना है कि पाकिस्तान को अगले 10 वर्षों में कम से कम 3 करोड़ नई नौकरियां पैदा करना होंगी, जबकि हर साल 25 से 30 लाख मुलाजमतें ज़रूरी हैं। उन्होंने खबरदार किया कि नौजवानों को रोजगार ना मिला तो बेरोजगारी, बदअमनी और हिजरत में इजाफा होगा। पाकिस्तान को अगले 10 वर्ष में कम से कम 3 करोड़ नई नौकरियां पैदा करना होंगी। हर साल 25 से 30 लाख मुलाजमतों का बंदोबस्त नागुज़ीर है। सदर आलमी बैंक अजय बंगा ने पाकिस्तान के लिए रोजगार के महाज पर खतरे की घंटी बजा दी। आलमी बैंक के सदर ने बैनुल अक़वामी खबर रसा इदारे को इंटरव्यू में कहा, अगर नौजवान आबादी को रोजगार फराहम न किया गया तो बेरोजगारी में इजाफा होगा, बदअमनी बढ़ेगी और हिजरत का रुझान तेज हो जाएगा। आलमी बैंक पाकिस्तान के साथ सालाना 4 अरब डॉलर की शराकत दारी करेगा ताकि मईशत को सहारा दिया जा सके। नौकरियों का 90% हिस्सा निजी शोबा पैदा करता है, जबकि ज़राअत से 1/3 रोजगार हासिल किया जा सकता है। सदर आलमी बैंक ने बिजली के शोबे को सबसे बड़ा मसला करार देते हुए कहा, नुकसानात मईशत और सरमायाकारी को शदीद नुकसान पहुँचा रहे हैं और फौरी इस्लाहात ज़रूरी है।
कुछ कारोबार की बात करेंगे। सोना तेजी से नीचे आने लगा। फी तोला कीमत 21,400 रुपए कम हो गई। 1 तोला कीमत 5,07,762 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की यह कीमत 18,347 रुपए कमी से 4,35,324 रुपए हो गई। आलमी सराफा मार्केट में सोना $214 सस्ता हुआ। चांदी की फी तोला कीमत भी 1,430 रुपए कमी से 7,825 रुपए हो गई। हैवी ट्रैफिक की टक्कर से आपको बताएं कि आवारा कुत्ते काट लेते हैं कभी शहर कराची के रहने वालों को। शहर कायद के बाहमी खतरात में घिरे हुए हैं। सरगर्दगी के वाक़यात में तशवीशनाक इजाफा हो गया है। ज्यादातर बच्चे आवारा कुत्तों का शिकार बन रहे हैं। ऐसे में इंतजामिया कुत्ता पकड़ मुहिम शुरू करने के बजाय चैन की बांसुरी बजा रही है। सड़कों पर आएं तो डंपर, टैंकर से रोंदे जाएं और गलियों में जाएं तो आवारा कुत्ते काट खाएं। कराची के कोने कोने में खतरात मंडलाने लगे। मकाम सुनसान हो या गुंजान, आवारा कुत्ते धड़ल्ले से घूमते हैं, जिसे चाहें भंभोड़ देते हैं। सिर्फ जनवरी में 5,000 से ज्यादा अफराद संगजीदगी का शिकार हुए। इन वाक़यात में 2 अफराद जान की बाजी हार गए। निजी अस्पताल की डॉक्टर रोमानिया ने चौंका देने वाला इंकशाफ किया। कहा, आवारा कुत्ते यौमिया दर्जनों अफराद को जख्मी कर रहे हैं। उन्होंने सूरत हाल को तशवीशनाक करार दिया। सिविल अस्पताल कराची के रेबीज इंचार्ज का कहना है कि मुतासरीन में बच्चों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है, मगर रोकथाम के मौसर इकदाम नजर नहीं आ रहे। दूसरी जानिब इंतजामिया कुत्ता मार तो क्या, कुत्ता पकड़ मुहिम शुरू करने से भी कतरा रही है। शहरी पूछते हैं कि मुतल्लिका इदारे और हुक्काम आखिर कब होश में आएंगे। शिकायत की कि खुद कुत्तों को ठिकाने लगाएं तो पुलिस तंग करती है, ताहम कुत्ते काट लें तो कोई पुरसान हाल नहीं। हैदराबाद में गरीब घर के बच्चे ने वालिदैन के ख्वाब पूरे कर दिए। मुकाबले के इम्तिहान में कामयाबी हासिल की। पुलिस में DSP का ओहदा पा लिया। इरफान आरई की रिपोर्ट। मेहनत, लगन और जद्दोजहद की कहानी। हैदराबाद में अमेरिकन क्वार्टर के रिहायशी नौजवान एलीज रेशाहुवेज ने अपनी मेहनत से ख्वाबों को ताबीर दे दी। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन इम्तिहानात में कामयाब होकर DSP का ओहदा हासिल किया। घर पे भी पढ़ाता था, उसी से अपनी पॉकेट मनी अरेंज करता था, क्योंकि जो भी CSS PMS की बुक्स वगैरह होती थी वो लेना और फिर डिफरेंट एग्जामिनेशंस के लिए अप्लाई करना, तो उनके चलान फीसिस ये वो, या फिर शहर से बाहर जाना इंटरव्यू के लिए या टेस्ट के लिए, तो ये मैं अपने एक्सपेंसेस खुद ही बेयर करता था। इसी तरह से करके टीचिंग करके एक कमरे के छोटे से घर में एलीज रेशाहुवेज आंधी तूफानों में मुश्किल में पढ़ने के लिए तैयारी करने के लिए बहुत जाते थे। मैं तो मना करता था, कई दफा ये खुद भी जाते थे। शाहवेज ने साबित किया कि इरादे मजबूत हों तो हर मंजिल आसान हो जाती है। अलीजर की कामयाबी ये साबित करती है कि आप किसी भी तबके से हों, अगर मेहनत, जुस्तजू और लगन रखते हैं तो हर इम्तहान में कामयाबी आपके कदम चूमती है। कैमरामैन इमरान राजपूत के साथ इरफान आरई, बोल न्यूज़, हैदराबाद। जंग से मुज़ाकरात तक का सफर। ईरान और अमेरिका तवील कशीदगी के बाद आमने सामने बैठ गए। ओमान का दारुल हुकूमत मस्कत बना मस्कन जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात किए गए। ईरान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने की, जबकि अमरीकी वफ़द में सदर ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विक्टॉफ और जैरेड कुशनर शामिल थे। फ़रीक़ैन ने मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक कर दिया, ताहम कोई हतमी मुआहिदा या अहम पेशरफ्त अभी तक सामने नहीं आई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने अमरीका से होने वाले मुज़ाकरात को अच्छी शुरुआत करार दे दिया। अमरीकी वफ़द से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में उनका कहना था कि बातचीत जारी रखने का इम्कान मौजूद है, ताहम इसका इन्हिसार मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी दारुल हुकूमतों में होने वाली गुफ्तगू पर होगा। एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ पाबंदियां। अमेरिका ने ईरान पर मजीद पाबंदियां आयद कर दी हैं। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक ईरानी तेल, पेट्रोलियम मसनूआत और पेट्रोकेमिकल मसनूआत की गैर कानूनी तिजारत में मुलव्वस अफराद, कंपनियों और जहाज़ों के खिलाफ नई पाबंदियां नाफिज कर दी गई हैं। ये इक़दामात ईरान की गैर कानूनी तेल की दरामद और बरामद की रिवायत को कमज़ोर बनाने और तेहरान के तेल की आमदनी से हासिल होने वाली मुमकिना माली माउनत को महदूद करने के लिए किए गए हैं। खेल की खबर शामिल करें और आपको बताएं कि T20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज आज से होगा। 3 मैचेस होंगे। इवेंट के पहले मैच में पाकिस्तान नीदरलैंड से टकराएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 10:30 बजे शुरू होगा। दूसरा मैच 2:30 बजे होगा, जिसमें वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड मध्य मुकाबिल होंगे। तीसरे मैच में भारत और अमेरिका आमने सामने होंगे, जो शाम 6:30 बजे शुरू होगा।
T20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज़ आज से होगा। 3 मैचेस होंगे। इवेंट के पहले मैच में पाकिस्तान नीदरलैंड से टकराएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 10:30 बजे शुरू होगा। दूसरा मैच दिन 2:30 बजे होगा, जिसमें वेस्ट इंडीज़ और स्कॉटलैंड मद्दे मुकाबिल होंगे। तीसरे मैच में भारत अमरीका आमने सामने होंगे, जो शाम 6:30 बजे शुरू होगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप के 10वें एडिशन के लिए कमेंट्री पैनल का ऐलान कर दिया। मुताबिक अजीम खिलाड़ियों और मौजूदा स्टार्स की शानदार फहरिस्त शामिल है। कमेंट्री पैनल में रवि शास्त्री, नासिर हुसैन, अयान स्मिथ और अयान रशीद जैसे आलमी शोहरत याफ्ता नाम शामिल हैं। T20 वर्ल्ड कप कमेंट्री पैनल में पाकिस्तान के 4 नाम वसीम अकरम, वकार यूनुस, बाजिद खान और रमीज़ राजा शामिल हैं, जबकि एडन फिंच, दनिश कार्तिक, कुमार संगकारा, सैमुअल बदरी, रॉबिन अत्का और कार्लोस ब्रैथवेट भी कमेंट्री के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। मौजूदा खिलाड़ी और ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतने वाले कप्तान टिम्बा बाउमा भी कमेंट्री में अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने फास्ट बॉलर हर्षित राणा के घुटने की इंजरी के बायस ICC T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने की तस्दीक कर दी है। BCCI के मुताबिक हर्षित राणा जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वार्म अप मैच के दौरान जख्मी हुए थे। डॉक्टर से मुशावरत के बाद BCCI की मेडिकल टीम ने उन्हें टूर्नामेंट के लिए फिट करार नहीं दिया। हर्षित राणा के फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज को भारतीय स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है। खबर आपको दे रहे हैं, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने फास्ट बॉलर हर्षित राणा के घुटने की इंजरी के बायस ICC T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने की तस्दीक कर दी है। और BCCI के मुताबिक हर्षित राणा जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वार्म अप मैच के दौरान जख्मी हुए थे। वादी सवात की हसीन वादी कालाम में स्नो फेस्टिवल का आगाज हो गया है। बर्फ से ढके पहाड़, खुले मैदान और रंगारंग सरगर्मियां सयाहों की तवज्जो का मरकज बन गई। देखते हैं सैयद अनवार शाह की ये रिपोर्ट। कालाम के शाही ग्राउंड में बर्फ का मेला सज गया। स्नो फेस्टिवल में मकामी खिलाड़ियों के दरमियान स्केटिंग, रस्साकशी और दीगर मुकाबले जारी हैं। मेले से लुत्फ अंदोज होने के लिए बड़ी तादाद में शायकीन भी सवात पहुंच चुके हैं। वादी कालाम में बर्फ से ढके मैदान और बुलंदो बाला पहाड़ सयाहों को खूब भा रहे हैं। सवात में इंतजामिया की जानिब से भी सयाहों की सहूलत के लिए खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। सैयद अनवर शाह, बोल न्यूज़, कालाम सवात। खबरों में फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। हमारे साथ रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।